आवाज येतो का आवाज? हा, आता हा. आता ठीक ठीक हो. अहो माझं लॅपटॉप ते अचानक व्हाईट व्हाईट स्क्रीन आलाय ते जे पेकुटे म्हणून
Krishna. We welcome everybody for this session. We would like to make one announcement. We will be joined by Dr. Shonam Memani. We actually हम लोग उनके लिए वेट कर रहे हैं. तो जैसे ही वो आ जाएंगे हम सेशन चालू करेंगे. तब तक मैं हमारी ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के बारे में बताना चाहते हूँ हमारे ऑडियंस को. अभी पैंडेमिक की वजह से काफ़ी लोग हॉस्पिटल आने के लिए झिझक रहे हैं. तो उसके लिए हम लोग ने टेली कंसल्टेशन और ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन चालू किए थे. बट अभी नाउ वी हैव स्टॉप द टेली कंसल्टेशन, पर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन सर्विसेज हमारी अभी भी चालू है. तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाके पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. और फ्री होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन भी हमने चालू किया है. ब्लड सैंपल कलेक्शन ये भी हमारी फैसिलिटी है और रिपोर्ट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी. ये तो हमारे काफ़ी ऑडियंस को इसके बारे में मालूम है, बट हम लोग ये वापस एम्फसाइज करना चाहते हैं कि अगर आप चाहो तो हमारे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन सर्विसेज के फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं, जिसके चार्जेस आर सेम एज ओपीडी कंसल्टेशन. हरे कृष्णा शिल्पा माता जी, थैंक यू आप हमारे सेशन में ज्वाइन किए. हरे कृष्णा शिल्पा माता जी, मैं सुनाई दे रही हूँ. आवाज आ रही है माता जी मेरी? आप अन्य हरे कृष्णा. हम अभी सेशन चालू करेंगे. आज हमारे साथ है डॉक्टर नाना साहेब मेमाने. He has a total experience of 10 years and he is associated with us, and he is our head of the department for the Ayurveda center. A brief about Dr. Nana Singh Memane is actually not required, but still as a formality मैं ये बताना चाहती हूँ कि he is a gold medalist in Ayurveda Vachaspati. He is an ordained speaker in the field of Ayurveda medicine and spirituality. He is a regular speaker of Ayurveda subjects on Hare Krishna International channel as well. He is a member of Ayurveda Vyasat and Lavadik, a private NGO working for social welfare. He conducts Ayurveda Garbhadan Sanskar program. Many of our audience are not aware of this program. तो मैं यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि this is a program which we have started now even online. So अगर expectant mothers अगर इसके लिए enroll करना चाहते हैं तो they can get in touch with our spiritual department and they will guide us about everyone about this program. So he is a good relationship consultant based on Vedic wisdom. Now I request Dr. Nana Sahib to start our session. Sirji, over to you. Hare Krishna.
हेलो, हाँ, मेरा स्लाइड दिख रहा है आपको? यस प्रभु जी, यस। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है आज के प्रिवेंटिव एंड प्रेडिक्टिव आयुर्वेदा फॉर ऑस्टियोपोरोसिस में। ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज पूरे दुनिया में जो बर्डन है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट बर्डन ऑन द अर्थ इज ऑस्टियोपोरोसिस। जनरली अस्थि धातु, हम आयुर्वेद में इसको अस्थि धातु बोलते हैं। ऑस्टियम, ऑस्टियम का मीनिंग है अस्थि, अस्थि धातु। अस्थि धातु से ऑस्टियम शब्द आया है। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस को आयुर्वेद में हम लोग अस्थि क्षय बोलते हैं। जनरली उसकी वजह से क्या होता है, बोन्स वीक होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और इवन कभी कभी थोड़ा सा भी गिर गया तो टूट जाते हैं। सो osteoporosis related fractures most commonly occur in the hip, wrist or spine. Bone is living tissue that is constantly being broken down and replaced. Restore and repair is done regularly, but the repair is slower than the destruction. So osteoporosis occurs when the creation of new bone doesn't keep up with the loss of old bone. So there are certain causes which are mentioned in Ayurveda. We need to focus on these things because we are going to see more, talk more on preventive aspect of the bone health. So as you know, the preventive medicine or predictive medicine, which is more talked about nowadays, that is the origin and the expertise lies with Ayurveda, because Ayurveda is the science which deals with swasthasya swasthya rakshanam aturasya vikar prashamah. Swasthasya swasthya rakshanam means one who is very healthy and how to keep that person healthy. That is our first aim. So Ayurveda is a medicine which talks about increase your energy and stamina even though you are healthy. And if you are diseased, then aturasya vikar prashamah. If you are diseased, then just take care of the disease. That is cure, treatment. So treatment part and preventive medicine, both the things are very well taken care by the Ayurveda. So they have certain pathophysiological understanding. Ayurveda has certain pathophysiological understanding by which it actually able to go to the root of the disease. So the consideration of asthi dhatu or bones is like there are 7 tissues in our body: plasma, blood, muscles, fat, bone, bone marrow, and seminal fluid. So these are 7 tissues of our body. As we actually eat the food, then that food is converted into a child that is called as plasma liquid. Then that plasma is the food is converted into blood. Then like that, there are 7 tissues we take their nutrition daily on regular basis with the help of food, whatever we eat. But the food contents which are familiar with the disease, the tissues, then it helps the tissues to grow or to be healthy. Or if the food is containing some destructive things inside, then it destroys the specific tissues which are destructive for the food, which is destructive to those tissues. There are certain causes which are lying in food, which are lying in lifestyle. So very specifically, they have mentioned excessive exercise. You should remember this. In India, you see, in India, there is a statistics, madam also will tell you, Dr. Sonal, that women actually are more prone to have osteoporosis than men. And that is very typical in India. I can see in our houses also now, lockdown is there within 7 months. Last week, we have seen how much our ladies or women of India work, how much they work, and all the men, they have understood how much they work when they are staying at home. So excessive exercise is one of the biggest cause for getting osteoporosis as per Ayurveda. Lack of less bones, fasting, upwas, excessive fasting is also not good, or even the presently that is going on very much appreciated, that is intermittent fasting. So eat between 8 hours and then again 14 to 16 hours, don't eat anything. This intermittent fasting is not allowed by Ayurveda. And we can see, I in my practice, I can see those people, they are actually following intermittent fasting. After some days, they are finding the
consequences of that, because the fasting, unnecessary fasting is not allowed in Ayurveda. As you have the appetite, you should eat that much as per your capacity, not over or not less. It is the actually Suvarna Madhya, the science which talks about the midway, that is neither extremes, not too much fasting and not too much eating. It should be controlled. So excessive fasting is one of the big cause for less bones. Excessive friction, that is gharshan. Again, that is excessive struggle. Yes, can you hear me? Yes. So direct air means pravata sevanam. So these are two types of pravat. One is when you go at mountain and there is good air is flowing. But this pravat is expected as artificial fans, those like 3 and 4 and fast fan, and especially in Mumbai area or those who are hot area, there people use the fan very fast, and this fast fan or direct air affect the bone strength. Diet lifestyle Vatvika, that is very pungent food, late eating, delaying the food, less eating, dry food, that is very raw, dry food. Raw food means eating only raw substances, not cooking them, just drinking the juice of some sabji, juice of some fruit, juice of something, and just eating that raw food. Non-milk means the food which doesn't contain any milk products or milk. I am talking about organic milk products, not like very drastic like cheese and all those things, which are actually very in not in natural way. They are made out of vinegar, the sour thing, which is not to be gone with milk, but it is added into milk. That type of food we don't expect here. We expect organic means that curd is there, buttermilk is there, milk is there, and malai is there, milk cream, natural milk cream is there, ghee is there. So there is a group of people now which we are finding last 4 to 5 years. That group of people, they are actually not having milk. But I have seen, fortunately or unfortunately, I am in the field of Ayurveda. So many people who are having problems uh, with problems due to not taking milk or milk substances. They are coming to me and they are taking raw food or only vegetarian food but not milk. So that there are again consequences, because milk has certain amount of lipids which are very naturally healthy for our body. They cross the blood-brain barrier, they go into your brain, they form the bone marrow, they heals the bones, they reduces the bone porosity. So less sunlight. Nowadays, people work in AC due to hot weather, so that is also causing a great effect in bone health. Pungent, too much pungent, tikha, stale, because that food has nothing to offer you as a nutrition, and stored food, which is again, it is actually lifeless food. We call it as lifeless food. Either the curd which is kept by many companies, they can keep the curd for 2 to 3 months, but the truth behind is that bitter truth behind is that they actually destroy the bacteria which are very helpful to our body, and unless they destroy those bacteria, the curd becomes very sour. You cannot keep that curd for 1 month or 2 months or 3 months. If you want to keep the curd without being sour, then you need to keep some put some destroy some bacteria which cause that sourness. So these are the principles behind increasing Vat. Again, Abhishandi food, that is fermented bakery products, incompatible food, that is very important. The food which doesn't go together, if it is taken, then that is very detrimental to the strength of our bones. An injury accident, of course, if injury is there, bone is broken, then the bone marrow come out of that bone, then bone becomes hollow, it becomes weak, and the porosity is affected. Sapta Dhatu Ashray Ashray Bhav. There is one principle explained in the Ayurveda, that Asti Ashray 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 Bhav means just like we stay in a house. So house is one place, and there we stay in the house. So similarly, Ashray, the Asti or bones are the house, and in those bones there is a resident who stays in that as making the bones as a residence. That is Vata. Vayu, as you know, there Vayu is the air
like substance which stays inside our body. It is again stays in different parts of the body. Pakvashaya Kati Shakti Shrotrasti Sparshan Indriyam. That is large intestine where we pass the stool. The large intestine, last part of the intestine is large intestine called as Pakvashaya. Kati, that is lumbar region. Shakti, that is thighs. Asti, that is all the bones of our body. Shotra, kan, ears. Or Sparshan Indriyam, skin. These are the places Vayu resides. So you will see most of the places they are bony places. So all those bony places, their Vat stays. Those Vat has very innate, intimate connection with the bones. So if you want to tackle the bone problem, so you need to tackle the Vayu. That's why you may be surprised that our bone density is increased if you apply oil on your skin. So there is no direct connection. We can see that how skin can increase the strength of the bone. But Ayurveda explains that because the Vata resides in skin and bone, so the Vata is the mediating factor which converts the energy received from the skin in the form of oil or other nutrients that Vayu takes that energy and feeds the energy to the bones, and bones are becoming strong. So Vat is the resident and the residence place is bones. So we need to take this into account. Why late night sleep? Why late food? Why too much fan? Why the speedy fan? Why too much speedy activities affect the bone strength? Because it increases Vat, and when Vat is affected, it naturally affects the residence of that resident. That is very important. So, how to take care of this bony things, bone porosis, that is asthikshaya. So, asthikshaya, we have seen that there is one condition called as menopause, generally early menopause. So early menopause in the woman who has estrogen at lower level, so they tend to get their menopause earlier. So those ladies, it has been seen that they have tendency to have uh, less bone density, osteoporosis. So this is very clear that as your Vat is increased, as your Dhatukshay, that means all the tissues, they are actually decomposed or reduced to below than the normal level, it affects your other systemic function. And as I explained you previously only, there are 7 tissues. One is Rasarakta Mahasamed, Asthi, Majja, Shukra. Asthi is a bones, and after bones there are 2 systems. One is central nervous system and third is reproductive system. So as bone nutrition is affected, then naturally after bone there comes central nervous system, nerves get affected. And as you see, the nerves and the bony, both the system, they are very interconnected with each other because Vayu moves through both of them. And last, after that, as bones and bone marrow both are not healing properly, then after that immediately comes reproductive system. So reproductive system is naturally affected, and especially those women who has low estrogen. And as per Ayurveda, we could see that as Vata goes up, that lady, she is actually heavily exercising. That Vata dries up the system. Most of the systems of that woman are dried up, and that drying up of the system actually reduces the normal function, causing earlier old age signs. And all those earlier old age signs are not only in the form of bone, they are in the form of reproductive incapability or the brain incapability, that is remembrance, lack of remembrance or memory, loss of memory. So for that, how can we go ahead so that we could prevent most of the things? So there are three different causes for the disease. One is Pratnyaparad, second is Kala, and third is Indriya Sannikarsha, Indriyartha Sannikarsha. So Vishama Indriyartha Sannikarsha. So out of which Kal is the Kal means the time. Time is not in our hand. As age passes, then old age, naturally there is a natural osteoporosis which is seen in old age people after 70 years. But the osteoporosis seen in old age at 70 years, we could see if that in 45 or 50 years, that is the actually very
destructive situation which is happening in our body. So for that, there is a clear-cut lifestyle which is mentioned in Ayurveda as like Sadavrutta. Sadavrutta means it explains you if you are healthy, then how to protect your health just by starting how to get up and how to sleep. So that is very important. When you sleep on time and early, generally I am seeing now. I have many times I have told that still people have not changed their habits. They have time now. They have time. They have knowledge. They have experience of getting good sleep. Still, people are not sleeping before 10. So 10 o'clock is the right time which if you want to keep your bones age-wise healthy, it is very much necessary to sleep on time for bone health. First thing. Second thing is get good sleep and keep fan on 2, maximum 2. If you have very much hot climate, then arrange something to make that climate little cooler, but don't increase the speed of fan. Or if you want to increase the speed of fan, then just sleep indirectly. That air will not affect your skin. So you have to see that Shita Pravata means fast speeding air is not hitting your body directly. So sleep should be earlier. The sleep air should be good ventilation but not speedy air. Third, it should be getting up early. So if you sleep early, then naturally you will get up early. And after that, your main lifestyle starts. Daily, it is recommended for prevention also. Madam will tell you in the treatment what is to be done. But for prevention, it is recommended that if you daily apply oil on your body, it will keep your musculoskeletal system very strong. I can share you an example. Many times I have told that one of our senior Ayurved Vaidya was there in Pune, and it is told in Ayurveda that if you apply daily oil, your strength is maintained. So he was around 70 years old and he was applying daily oil, sesame oil, warm sesame oil. And once what happened, you see in Pune there is a big, the old homes are there, old buildings are there. So in that building there are like straight way 75 staircases are there. Straight, then person walks there, climbs that on those staircases. So what happened? This doctor actually he fell down from the staircase, 75 staircases, just like rolling down and down. And then after that, he just immediately got up and he started walking. So to shock to everyone, he was not having any single fracture or nothing. He was affected. Why? One of the big cause he was telling that I am saved just because I am applying oil on my body. So I would suggest you, whoever has some difficulty in lifestyle, then just please apply warm sesame oil or coconut oil or mustard oil. Mustard oil in warm winter season on the body below your neck. Just apply the oil and it will take care of your bones and skin. So that is very important. Then eating on time. Again, intermittent fasting. I told you previously also that is not advised by Ayurveda. Ayurveda advises within 3 hours or within 3 to 4 hours, Nihari. After getting up, if you feel hungry, then you should eat the food. What happens nowadays? People are having the habit of drinking tea. That tea, a tannin or the intoxicant of that tea actually forgets you your hunger, make you forget the hunger. So people generally don't eat on time. They drink tea and after 4 5 hours, 12 o'clock. Generally, ladies of India, they eat their main meal at around 12 to 1. Can you imagine the lady? She is the first she is the first person in the house who gets up early in the morning. And as soon as she gets up, what she does, she takes bath and starts cooking. Before that, she just takes hot tea and they start cooking and then make tiffin for the child, then make tiffin for the husband. And then after that, she starts her yoga son or whatever she want to do. She does that and as soon as she is finished all those things, it is 12 o'clock or 1 o'clock. And at around 1 o'clock, she eats her. So that is the fasting which she has done, she is not supposed to do. Because empty stomach, if you perform exercises quite a long time, then it is detrimental to your not only bones, but I have seen even blood pressure
drops down of these ladies, because there is no proper nutrition. That improper nutrition not only affects the bone, but it affects all the tissues of the body. So I would suggest all the Indian mothers, they should sleep early, get up early, take bath and have milk in the morning, or they can have breakfast in the morning. That is very important, which is to be told to women, because women are at higher risk of osteoporosis than men. 1 in 3 women, they get affected after 50 years of age, and 1 in 5 men, they get affected by osteoporosis after 50 years of age. So you see, it is almost double than the men. So why? The cause is very clear. Men are getting ready-made tiffin, and these women are doing tiffin, but not getting ready-made food or not eating the food on time. So I would suggest you, if you want to improve the strength of your bones, first start applying oil on your body and start eating on time. No new trial and error for the food habits. Please remember, our India is such a fortunate country where Ayurveda has taken birth. Ayurveda is our native science of medicine. Just follow that, whatever our tradition used to be. So don't try to be follow some different which is not tried for many years. It is just 1 or 2 years or someone specific experience. Don't go by that. You just try to follow on time Nahari, then lunch and then dinner. Rutucharya, again, there is a seasonal lifestyle which is on time is different. The rainy season lifestyle is different. So वर्षा ऋतु में खाना अलग है और धूप में खाना अलग और ठंडी में खाना अलग. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो ऋतुचर्या ऋतु ये है, अलग अलग ऋतु ये. तो जो बोलते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा है तो सब लोग ये इसको ही खाइए, लेकिन आप सबको मालूम है जो ठंडाई देते हैं वो कब देते हैं? ठंडाई पीते हैं गर्मी के समय. और ठंडी के समय क्या करते हैं? ठंडी के समय मिक्स्ड वेज खाते हैं, तला हुआ भी खाते हैं. दिवाली के समय कैसे अलग अलग चीजें खाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय है, इस समय डाइजेस्टिव फायर अच्छा है, इस समय आप इन सब चीजों को पचा सकते हैं. इसके अनुसार हर एक सीजन में अलग अलग फूड डाइटरी हैबिट्स है. उसके साथ आपका स्वयं का पर्सनालिटी भी है. जिस पर्सनालिटी को कुछ चीजें नहीं चलती है, कुछ चीजें बहुत अच्छी चलती है. जैसा कि हमारे घर में जो मुझे चलता है वो मेरी वाइफ को हो सकता है कि उसको वो ना चले, या फिर बच्चे को जो अच्छा लगता है वो बच्ची को अच्छा ना लगे. ऐसा होता है क्योंकि देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटीज इन योर हाउस. सो you need to understand the personality also to keep the specific diet and lifestyle in your house, so that your preventive life is taken care, preventive lifestyle, preventive health is taken care. So Rutucharya is very much needed, Dinacharya is very much needed, daily schedule. So please choose your exercise or exertion or physical work as per the capacity. If you have capacity of doing 8 hours work, then don't work for 10 to 12 hours. Please remember. Or either you improve the capacity of working by adding dietary habits, by taking proper rest. Because you are not taking proper rest, you are again working very high and not eating good food. That is detrimental to your life. So either you improve the stamina, just like one person who has started exercise. जिसने एक्सरसाइज चालू किया है, पहले दिन उसकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी केवल 10 मिनट होती है. 2-3 महीने के बाद उसकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी 10 मिनट नहीं रहती, वो 2 घंटे हो जाती. क्योंकि एक्सरसाइज करने की एबिलिटी या फिजिकल स्ट्रेंथ को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते करते आप फास्टिंग करके एक्सरसाइज नहीं कर सकते. उपवास कर रहे हैं और एक्सरसाइज करके बॉडी बड़ा बनाए, ऐसा कभी होता नहीं. आज ही मेरा एक पेशेंट आया, बोला सर मैं जिम में रहता हूँ और हम लोग जिम में ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग देते समय ऐसे कुछ उनको पाउडर देते हैं, वो पाउडर खाने से लोगों का क्रिएटिन बिगड़ जाता है. तो मुझे मालूम है वो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड लेते हैं बच्चे, और स्टेरॉइड लेते हैं, वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बड़ा शरीर बड़ा करते हैं. ये सभी बच्चों को बोलो उपवास करो और फिर हमें ऐसा बॉडी बना के दिखाओ, नहीं है. क्योंकि कभी भी आपको यदि आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाना है तो आपको उस हिसाब से रेस्ट भी लेना होगा और उस हिसाब से आपको खाना भी खाना होगा. तो आपको ध्यान में रखना, यदि आप ज्यादा काम करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको खाना और रेस्ट, सोना, ये दोनों करना है. और पंचकर्म इसके लिए कैसा है? पंचकर्म केवल ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है. पंचकर्म हमें
डिसीज होने से पहले भी हम करते हैं। तो आप जानते हैं पंचकर्म 5 प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार की शुद्धि क्रियाओं को पंचकर्म बोलते हैं। शुद्धि क्रिया मतलब है जैसा हमारा वॉश बेसिन खराब हो जाता है, उस वॉश बेसिन को ठीक करने के लिए हम लोग सॉल्वेट्स डालते हैं, बाद में आधा घंटा पानी नहीं डालते, बाद में फिर उसको क्लीन करके जिप जोर से पानी मार देते हैं तो फिर वो क्लीन हो जाता है। वैसे ही ऋतु के अनुसार, जैसे बारिश का समय है या फिर ठंडी का समय है या फिर वसंत ऋतु का समय है, ये समय में हम लोग वात पित्त कफ इन 3 दोषों को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्यों डिटॉक्सिफाई करना है, क्योंकि हम यदि इवन तो हम हेल्दी भी है तो भी ये जो वातावरण है इससे हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, खान पान की वजह से हो या फिर कुछ दवाइयाँ गलत ली है उसकी वजह से हो या फिर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी इसकी वजह से हो या फिर सीजन की वजह से हो। हमारा सब अच्छा है लेकिन वो सीजन की वजह से होता है, जैसा बादल अभी अक्टूबर में कहाँ बारिश होता है, लेकिन अक्टूबर में बारिश हो रहा है। तो इस बारिश की वजह से जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, इन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है या शुद्ध करने की, धोने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पंचकर्म। और ये पंचकर्म आप लोग बिना बीमारी के पहले ही कर सकते हैं। तो आपका यदि बोन्स का स्ट्रेंथ अच्छा रखना है तो आपके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, बस्ती नाम का एक पंचकर्म है। बस्ती जो आयुर्वेद की दवाइयों का इनेमा होता है, जो आप हेल्दी है तो भी ले सकते हैं बारिश के समय। इसको ध्यान में रखिए, आप एकदम आपके कैलेंडर में फिक्स करके रखिए कि आने वाले बारिश में 3 महीने रहेंगे, उसमें से मैं 7 दिन निकालूंगा खुद के लिए, जिसमें मैं बस्ती पंचकर्म करूंगा। जिससे यकीन मानिए यदि कोई बस्ती करता है तो मेरे यहाँ भी कितने पेशेंट्स हैं, अभी कोरोना की वजह से चिंता में गया हुआ पेशेंट सोता ही नहीं है, तो उस पेशेंट को भी हमने बस्ती दी है। कोरोना होने के बाद पोस्ट कोविड 1 डेढ़ महीने के बाद जब हम बस्ती देके देखते हैं तो पेशेंट का नींद भी अच्छा होता है। नींद अच्छे होने के बाद उसका सर दर्द वगैरह बाकी की सब चीजें जाती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। वैसे बिना डिसीज का भी यदि आप बस्ती करेंगे तो भी आपको उसका बहुत फायदा होता है। बस्ती प्रॉपरली डॉक्टर के सुपरविजन में करना है। पानी से, जैसा हम पानी से मुंह धोते हैं, तो पानी से मुंह धोना और डेंटिस्ट के पास जाके मेडिसिन से मुंह वॉश करना, इसमें काफी फर्क है। वैसे ही है और बस्ती, कुछ लोग पानी का बस्ती लेते हैं लेकिन पानी का बस्ती रोज लेंगे, वो गलत प्रैक्टिस है। बस्ती लेने के कुछ इंडिकेशन है और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कभी समय बस्ती ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, इसके नियम है। आप भले ही हेल्दी है तो भी आपको ये नियम फॉलो करने, नहीं तो अननेसेसरी बिना काम का खुद के हाथों से अपने मन से बस्ती लेंगे तो कुछ दिनों में आपका अग्नि मंद हो जाएगा। क्योंकि पानी से अग्नि क्या होता है, बूझ जाती है। इसलिए ये अग्नि के तत्वों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है और उसको पकड़ के रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक पंचकर्म है जो हमने आपको बताया। बारिश के समय बस्ती करवाना ये आपके लिए बोन्स की स्ट्रेंथ को बचाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अंत में एक बताऊंगा आपको कि चंद्रमा के समय जो सो जाता है वो चंद्रमा का उचित तरीके से आदर करता है, और जो सूरज के सामने काम करता है, सूरज के सामने जाता है, वो भी सूरज का आदर करता है। का मतलब ऐसा है कि जो सूरज में जाएगा उसको विटामिन डी अच्छा मिलेगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि तो आपको मैंने बताया है कि क्या करना नहीं चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए वो भी बताया है, पंचकर्म आप क्या कर सकते हैं वो भी बताया है, रोज हमें क्या करना है जिससे हम अभी हेल्दी है, हमें हेल्दी रहना है तो उसके लिए क्या करना है वो बताया। अभी आपको हमारे मैडम बताएंगे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के कैसे होता है और होने के बाद इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर सोनल।
काय करू ह्याला बाजूला घ्या ना त्याला काढून टाका Hare Krishna. Am I audible? Hare Krishna. Yes. Okay. So I think Dr. Memane, because of some technical issues, he could not present with the slides. So now I'm here. मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखो अभी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है ऑस्टियोपोरोसिस जो है वीक एंड ब्रिटल जो बोन हो जाते हैं जिसको मराठी में ठिसूल बोलते हैं एकदम फ्रेजाइल फटाक से टूट जाते हैं ऐसी जब भी बोन्स होते हैं तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं तो ये अगर थोड़ा भी स्ट्रेस हो जाए या फिर थोड़ा भी धक्का लग जाए तो अगर पेशेंट गिरता है ऐसी स्थिति में फ्रैक्चर हो जाता है तो अगर ऐसा किसी को लक्षण दिखाई देता है ये ऑस्टियोपोरोसिस है दिस नेचुरली शुड बी विद द ओल्ड एज जब भी 70-80 साल के हो जाते हैं उसके आगे ही होना चाहिए लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेकर अपने यंग लोग इनमें भी यह लक्षण दिखाई देता है कि जब भी वो गिरते हैं तो फटाफट बोन फ्रैक्चर होता है तो ये दिखाता है अस्थि धातु की कमजोरी ऑस्टियोपोरोसिस पोरस माने छेद जिसको हम लोग होल बोल सकते हैं जो नीचे हम देख रहे हैं हेल्दी बोन अगर यही छेद अगर ज्यादा है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है माने उसकी बोन टिश्यूज की डेंसिटी कम हो जाती है और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में तो आप देख रहे हैं जो नीचे पिक्चर में दिखाया दिया है कि बहुत ही टिश्यू कम है और होल होल ही ज्यादा है तो ये जो है बोन का जो टिश्यू रहता है ये कॉन्स्टेंटली मीन्स नॉट ओनली अबाउट बोन अब हमारे शरीर में से हर एक टिश्यू हर एक पेशी हर एक सेल ये रिप्लेस होती रहती है वो अपना एक टाइम पीरियड में काम करती है काम अपना एज खत्म होने के बाद वो डिस्ट्रॉय होती है क्षत बोलते हैं उसको और फिर नया जन्म होता है तो ये दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ये हमेशा ही चलता है एक टिश्यू बनती है और दूसरी जो है वो मृत होके निकल जाती है तो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस जब भी कभी होता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू बोन टिश्यूज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन टिश्यूज जो नेचुरली होना चाहिए इसका अगर प्रपोर्शन बिगड़ जाएगा स्पीड बिगड़ जाएगा तो फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हम देख रहे हैं कि एज और सेक्स इनमें से कि क्या है कि कौन सा फैक्टर है कि जो जिसमें हमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा दिखते हैं तो ये टी फैक्टर दिखा रहा है -2.5 देखो 50 की उम्र में और 60 की उम्र में और 70 की उम्र में तो देखते हैं कि 70 इयर्स की जो एज है तो उसमें सबसे ज्यादा ये दिखाई देता है उसमें भी अगर हम देखते हैं वुमन जो है स्त्री जो है स्त्रियों में इसका प्रमाण बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है तो अगर हम जन्म से बात करें अस्थि धातु में पुरुष कहलाता है आयुर्वेद में उसमें सबसे ज्यादा ये धातु का प्रमाण ज्यादा रहता है नेचुरली एंड वी नो कि किस तरीके से पुरुष लोग जो है वो हार्ड काम करने के लिए माने जाते हैं हेवी वर्क दे कैन डू दे हैव फिजिकल स्टेमिना मोर देन वुमन तो ये जो है ये बोन के स्ट्रक्चर से आता है और इसीलिए मूलतः ये फेमिनाइन जो बॉडी रहती है वो डेलिकेट होने से उनमें ज्यादा ही दिखाई देता है और दूसरा हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर का 11% है स्ट्रोक में से डिसीजेस का अगर हम देखें 4 डिसीजेस कंपेयर किए तो जो ब्रेन स्ट्रोक है वो 10% है हार्ट अटैक 11% में दिखता है और ऑस्टियोपोरोटिक जो फ्रैक्चर्स है वो 68% सबसे ज्यादा इसका प्रमाण दिखाई देता है तो ये जो प्रमाण बहुत ही ज्यादा है इसके कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे अगर हम हमारे बूढ़े दादी
और दादी परदादी इनका अगर देखते हैं तो 110 की उम्र में भी वो चल सकते थे, काठी का सहारा लेके, लाठी का सहारा लेके वो चलते थे, घूम के आते थे, निडल में से थ्रेड को निकाल सकते थे। तो व्हाट इज द फैक्टर नाउअडेज कि जल्दी से 60-70 में ही फ्रैक्चर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर हम विचार करेंगे तो हमारे आजकल की लाइफस्टाइल और जो डाइट पैटर्न है उसके बहुत ही ज्यादा उसमें से हमें कारण मिलेंगे। ये देखिए, ये है पिक्चर। अगर हम हिप फ्रैक्चर का पूरे जगत का नकाशा देखते हैं तो इसमें भारत में और कुछ जो अमेरिका का कुछ भाग है उसमें कम दिखाई देता है। लेकिन आप अगर देखेंगे रशिया और जो अमेरिका का ऊपर का भाग है वहां पे और कुछ प्रदेशों में बहुत ही रेड जो दिख रहा है एरिया, उसमें बहुत ही ज्यादा इसका प्रमाण दिखाई देता है। तो अगर हमें देखा, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर विचार किया जाए तो भारत में थोड़ा उस हिसाब से कम दिखाई देता है। हम आयुर्वेद के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करें तो आयुर्वेद और कुछ देशों में हमेशा ही सब्जियों को तड़का देने की आदत है। तो तड़का देते हैं तो जो ऑयल है उसमें राई, हिंग, हल्दी ये जो दिया जाता है, ये नेचुरली जीरा, ये वात को कम करने वाली चीजें हैं। तो तड़का देने के बाद ये जो है ये उस सब्जी का, उस जो फूड आइटम है उसका वात को कम करता है और इट हेल्प्स, ये क्या करता है, ये पचाने के लिए भी मदद करता है जिससे एब्सॉर्प्शन बढ़ता है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, अगर वुमन एंड मेल में कंपेयर किए तो हर तीसरे फीमेल में से एक जो फीमेल है उसको ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस दिखाई देते हैं, फ्रैक्चर्स दिखाई देते हैं और 5 पुरुषों में से एक पुरुष को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर का चांस है, ऐसा उनका प्रमाण है। अगर ये देखिए, वंस अगेन सेम थिंग, एज के हिसाब से ये जो है ये नॉर्मली ऐसा चेंजेस होता है। आप अगर इसमें से हम पता कर सकते हैं कि जैसे आर्मी में लोग होते हैं जिनका पोस्चर, करेक्ट पोस्चर होता है, तो ये लोग का फिटनेस इज वेरी गुड। तो अगर हम हमें जांच सकते हैं, ऐसा अगर हो रहा है हमारे नेक में और शोल्डर में हम झुक रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज द कॉज, क्योंकि अगर कोई भी लाठी जो है अंदर से घनी है, कड़क है, तो वो झुकती नहीं है। वही अगर अंदर से पोखरी हुई है तो वो झुक जाती है, वो फ्रेजाइल होती है, कमजोर हो जाती है। इस कारण वो हमें दिख रहा है कि 70 साल की उम्र में कैसे बॉडी झुक जाती है। तो और एक रीजन हमें स्त्रियों में दिखाई देता है कि अर्ली मेनोपॉज में भी ये सिम्टम्स जो है ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस वो दिखाई देते हैं। इसके अनेक कारण हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो धातु क्षय, मेनोपॉज जो है जल्दी आना, ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ, जैसे सर ने भी एक्सप्लेन किया है कि शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुओं का अच्छी तरह से निर्माण होना, उनका कार्य अच्छे रहना, ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, हेल्दी मनुष्य का लक्षण होता है। तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, माने मेंस्ट्रुएशन होना हर महीने, ये नेचुरली होना चाहिए अराउंड 50 to 55 इयर्स ऑफ हर एज। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लेडीज को 45 के पहले ही ये मेनोपॉज आ जाता है। ये दिखाता है कि उनके जो शुक्र धातु है, रस धातु है, रक्त धातु है, इनका क्षय, माने इनमें कमजोरी दिखाता है। तो ये कमजोरी होना अपने आप में ही उनका माल न्यूट्रिशन या फिर आरोग्य जो है वो खराब हो गया है, इसका ये दर्शाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग इसको वात वृद्धि बोलते हैं। एंड वात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू बोन डिसीजेस, जो भी है अस्थि की जो विकृति है वो हमेशा ही वात वृद्धि के कारण होती है। तो इसीलिए आप में से अगर कोई स्त्रियां ये सुन रहे हैं, तो अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स या
डिक्रीज लिबिडो है, इमोशनल चेंजेस है, ब्लैडर इरिटेबिलिटी है, वजाइनल ड्राइनेस है, हॉट फ्लैशेस आते हैं या नींद नहीं आती है, ऐसे कोई लक्षण है तो ये अस्थि क्षय, धातु क्षय के लक्षण है, वात वृद्धि के लक्षण है, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। आपको तुरंत किसी वैद्य के पास जाके ये डिस्कस कर लेना चाहिए। और मेल में भी अगर ये रात का नींद नहीं होता है, अच्छे से नींद नहीं आ रहा है, तो उनमें भी यही ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस आगे चल के आएंगे, क्योंकि उनमें भी धातु क्षय का लक्षण ये दिखाई देता है। क्यों ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमें इतना कंसर्न होना चाहिए? क्योंकि हम अगर सीधे से काम कर पाते हैं, अच्छे से चल पाते हैं, अच्छे ग्रिप हमारे हाथ पैरों में है, तो कॉन्फिडेंस रहता है, काम करने की इच्छा है, ताकत भी है, तो इससे एक आनंद आता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑलवेज गुड। या तो फिर ये सब अगर नहीं है तो पेन होता है और हमेशा ही थका थका सा महसूस होता है। तो ये सब चीजों को अगर टालना है तो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ये जो इसको एपिडेमिक भी बोला गया है, क्योंकि ये जग पूरे जैसे कि हमने देखा कि 68% चार इंपॉर्टेंट डिसीज में से 68% इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो है इट इज एपिडेमिक ऑल्सो, क्योंकि हर हर जैसे कि हम देखते हैं कि कोई एड है, टेलीविजन है, तो उसमें जो चीज को प्रमोट किया जाता है, नेचुरली लोग पीयर प्रेशर लेके या फिर वो देख देख के वो गलत चीजें सीख रहे हैं। रात को लेट लेट जाग रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हो या फिर अपने दूसरे चीजों के पूर्ति के लिए हो, लेट जाग रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं, लेट तक जाग रहे हैं और खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं। भागा दौड़ का जमाना आ गया है, शांति चली गई है, चिंता बहुत है। तो ऐसे ये सब कारण जो है, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया है कि ये वात वृद्धि के कारण है। तो इन ये सब कारण कोई 2-4 लोगों में अभी सीमित नहीं रह चुके हैं। सब लोग किसी न किसी स्तर पर इसमें सहभागी है और इसीलिए सबको ही ऑस्टियोपोरोसिस के ओर जाने के लिए सब लोग सज्ज है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम इसे किस तरह से रोक पाए और अपने आप को संभालें। देखिए, अगर इसमें 3-4 फ्रैक्चर मॉडर्न के हिसाब से एक वर्टेब्रल फ्रैक्चर दिखाई देता है और एक हिप बोन फ्रैक्चर बहुत कॉमन दिखाई देता है। तो वर्टेब्रा की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमें सीधा रखने के लिए सीधा रखने के लिए मदद करती है, इसमें फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होता है? हमेशा से ही बैक पेन रहेगा। फिर लॉस ऑफ हाइट तो मीन्स अगर हम इंडिया में से लोग भारत में से इसको कुछ ऐसा इतना महत्व नहीं देंगे, लेकिन पेन जो है, कांस्टेंट पेन, वो जो है वो हमें खींचता रहेगा और हमेशा की हमारे जो डेली रूटीन के जो काम है वो करने के लिए ये हमेशा ही हमें पीछे खींचता रहेगा। दैट विल नॉट गिव अस एंथुसियाज्म टू वर्क आउट। तो इसलिए ये जो है ये लक्षण जो है ये वर्टेब्रल फ्रैक्चर के है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही अपने डे टू डे लाइफ पे होता है। हमें इससे सावधान रहना चाहिए। हिप फ्रैक्चर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बोन है, जो हमें खड़ा करता है, चलने के लिए मदद करता है। हाँ, बाकी का बाहर का काम छोड़ो, घर में उठ के मोशन पास करना है या फिर नहाना है, खाने के लिए इधर से उधर जाना है, कपड़ा पहना है, हर चीज के लिए आपको ये इतना इम्पोर्टेंट जॉइंट है। और अगर ये हमेशा से ही पेन करते रहेगा तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में लोग आ सकते हैं। ये सब बहुत ही हमें दिखाई देता है कि एल्डरली लेडीज जो है उनमें ये हिप बोन फ्रैक्चर होता है और फिर वो कैसे डिपेंडेंट हो जाती है अपने घर वालों के ऊपर और कैसे उनका हालत खराब हो जाता है। हम डे टू डे हमारे ओपीडी में देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट लाइफ होता है। तो देखते हैं आयुर्वेद क्या कहता है, अस्थि धातु के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे? केशलोम नखश्मश्रु द्विज प्रपतनम केश, नख और जो अपनी मूछें है मैन में जो पुरुष में आती है, तो ये अगर झड़ने लगे
नाखून अगर फ्रेजाइल माने ऐसे टूटने लगते हैं, हमारे हाथों के बाल या केस केस जो है हेयर फॉल होने लगता है, तो बहुत लोगों में आजकल हमें दिखाई देता है ये। तो ये तो शुरुआत है, तो हमें शुरुआत में ही सब चीज को अगर कंट्रोल में लाना है, तो ये अगर हम शुरुआत में ही लाएंगे तो उसका आगे चल के तकलीफ नहीं होगा। इट इज सेड अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9। अगर एक स्टिच हम टाइम पे डालेंगे तो आगे जो बड़ा फट के 9 स्टिचेस डालना पड़ेगा वो बच जाएगा। तो इसीलिए आयुर्वेद की यही एक यूनिक क्वालिटी है, आपको बहुत ही पहले ही बता देता है। अगर आपके नाखून सब ठीक चल रहा है, भूख लग रही है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नाखून आपके अगर टूटे फूटे दिख रहे हैं, तो ये शुरुआत हो गई है अस्थि धातु का क्षय होने की। तुरंत जग जाओ। बाल अगर झड़ रहे हैं, ये शुरुआत है अस्थि धातु खराब होने की। हम्म तो इसलिए हमें ये सब, जैसे कि और संधि शैथिल्यम भी बोला गया है कि जैसे कि हाथ पैर हिलाते हैं तो उसमें ग्रिप नहीं है उठाने की, तो ये भी अस्थि धातु क्षय का लक्षण है। और क्या होता है, यही आगे चल के शिर्यन्ते एवच अस्थि क्या करता है, शिर्यता। आप देख रहे हैं पिक्चर में कैसे छेद छेद छेद, शिर्यन्ते माने छेद लाना, ऐसे होल होल बनाता है। क्या बना करता है, दुर्बल बनाता है, लघुनी बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है बड़ा, लेकिन और कोई कोई लोग तो मोटे भी दिखते हैं, एकदम ऐसा फुला फुला सा शरीर दिखता है, लेकिन वजन करने के लिए जाए तो वेट भी कम रहता है। हाँ, और कमजोरी रहती है, काम करने की ताकत नहीं रहती है। तो ये सब जो लक्षण है, ये अस्थि धातु खराब होने के, क्षय होने के लक्षण है, हमें जग जाना चाहिए। तो अभी इसका ट्रीटमेंट पार्ट में आयुर्वेद हमेशा से ही त्रिसूत्री आयुर्वेद के हिसाब से आहार विहार और औषधि के हिसाब से जाता है। तो डाइट का पार्ट जो सर ने एक्सप्लेन किया है कि किस चीजों से ये होता है, वही डाइट आपको नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि हमें अगर विष खाने से विष के लक्षण दिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो विष अंदर जा रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो डाइट, जो खाना हमारा वात बढ़ा है, वो सब रुकाना पड़ेगा। फिर हमें ऐसा खाना खाना चाहिए कि जो आगे मैं स्लाइड में बताऊंगी कि किस तरीके से खाना आपको मदद करेगा। विहार में लाइफस्टाइल आएगा, किस कहाँ से कब कैसे सोना है, और औषधि में इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर से कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा, बाहर से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और कुछ पंचकर्म भी जरूरी रहता है। तो अगर डाइट का पार्ट हम देखेंगे तो घी खाने में हमें रखना चाहिए, दूध रहना चीजें सीखती है बॉडी। ऐसे ही एक नवरात्रि का उपवास है, तो वो साल भर में एक बार नवरात्रि का उपवास आता है। इंडियन जो कल्चर है वो पीरियडिक फास्टिंग के लिए कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वजन बढ़ गया है और एक एक महीना आप कुछ ऐसा डाइट पे चले जाओ, ऐसा नहीं है। तो ये जो है उपवास को कम रख, इसलिए को खजूर, खारीक, बादाम और ये सब खाने में समाविष्ट करना है आपके। इसका समावेश करने से डायरेक्टली बोन को ताकत मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमली फूड। वात कब बढ़ता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम तो खाना खा रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का भी खा रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या चीज है कि जो हमें पोषण नहीं देता है। तो हमें देखते हैं कि पेशेंट आते हैं और घर के भी विशेषतः माता लोग, स्त्रियां जो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी इतना थोड़ा सा बस खाना खाने के लिए सब अच्छा करके बैठ जाती हूँ। तो ऐसा है, आपका जब भी खाने का टाइम है तब खा लेना चाहिए, और ऐसा टाइमली फूड ही आपको मदद करेगा। मेरे घर में तुलसी है, और एक भी दिन अगर उसको टाइम पे पानी नहीं गया तो वो मुरझा जाती है। तो उस एकदम सिंपल उदाहरण है। तो सिमिलरली उसको बाद में पानी डालेंगे ना तो तुरंत वो इंसेक्ट
सिमिलरली हमें अपना भी देखना है फास्टिंग, तो उसमें जैसे जैसे होले ना ऐसे ये बोन में जाके बनाता है। तो एक्सेसिव फ्रिक्शन, डायरेक्ट एयर, हमें प्रवात का सेवन माने फैन के नीचे, जोर के फैन के नीचे बैठ जाने का, तो ये सब को अवॉइड करना है क्योंकि ये सब वात बढ़ाता है, ये जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभिसंधी फूड, फर्मेंटेड एंड बेकरी, इडली, डोसा, ढोकला, उत्तप्पा, पाव, ब्रेड, अभिसंधी फूड है। तो इसको आप जितना मैक्सिमम अवॉइड करेंगे उतने आपके बोन टिश्यू जो है वो हेल्दी रहेंगे। इनकम्पैटिबल फूड, इनकम्पैटिबल फूड एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज है। विरुद्ध अन्न, मैं नहीं थी, पता नहीं सर ने एक्सप्लेन किया है कि नहीं। विरुद्ध अन्न जो रहता है, जो जैसे कि दूध और फल एक ही खाना है, नमक और दूध साथ में नहीं खाते हैं, गुड़ और दूध साथ में नहीं खाते हैं। तो ऐसी ये चीजें हैं, इसको अवॉइड करना है, गलत चीजों को एक साथ मिक्सचर करना। नया नया फूड बनाने का तरीका सीख के गलत चीजें मिक्स नहीं करना चाहिए। और एक जो है इंजुरी और एक्सीडेंट, ये भी रीजंस रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के, क्योंकि उसमें बोन में जो बोन टिश्यू है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है फिर से अच्छा होने के लिए। तो इसलिए ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो अगर कोई जो है मन अच्छा रखे चलता है तो अनअवॉइडेबल सॉरी, जिसको हम कर सकते हैं, ऐसे एक्सीडेंट और इंजरीज तो हमेशा ही अवॉइड हो सकती है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने ध्यान देकर अगर काम करता है तो देर आर मेनी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। वी सी जो बच्चे लड़के, नए यंग लड़के हैं, जोर से गाड़ी चला के चलते हैं, तो क्योंकि उनका मन ठिकाने पे नहीं है। तो अगर हम कोई भी हमारे बच्चों को भी सीख देनी चाहिए कि प्रेजेंट में रहना है, गाड़ी हाथ में आई तो जोर से चलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सब जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही बड़ी बन के ऑस्टियोपोरोसिस कराती है। लाइफस्टाइल में जल्दी सो जाना है, अननेसेसरी टॉक नहीं करना है। बहुत बातें करने वाले लोगों में भी वात बढ़ता है। तो कभी भी आए और गपशप शुरू और इतनी सारे बातें करना, तो ये भी अवॉइड करेंगे तो इट इज एज गुड एज अ ट्रीटमेंट ओनली। मीन्स एक्चुअली जो डोंट्स रहता है वो आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि ये नहीं करना है, ये ट्रीटमेंट का ही पार्ट रहता है। और कम से कम फास्टिंग करके टाइम पे खाना खाना चाहिए। और प्रॉपर जो है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है कैसी होनी चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, एक ही दिन में वर्कआउट कर लेंगे और एक ही दिन में अगर वजन कम करने का सोचेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। कभी भी आपको ये जो है ये वैद्य के पास जाके देख लेना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्रेनर है, जिम ट्रेनर, दे नो मशीन पे कैसे चलना है, मशीन को कैसे यूटिलाइज करना है, ऑल कैलकुलेशंस दे नो, बट देन उनको पता नहीं है कि अगर ये बंदा रात को जल्दी नहीं सोया है, इसने टाइम पे नहीं खाया है और इसको आप अगर चला रहे हो, वॉकिंग वॉकिंग करा रहे हो, इवन इफ ही इज 70, अगर आप अपने जो वजन है उससे बहुत ही ज्यादा वजन है तो भी वो वजन उसको काम में नहीं आने वाला है, वो उसको नहीं बचा पाएगा, उसको तकलीफ ही देने वाला है। तो इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम जो बोलता है उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। आसन और प्राणायाम जो है, आसन ये एक्सरसाइज है, तो आसन के पहले यम और नियम, डूज एंड डोंट्स आते हैं। जल्दी सोना है, टाइम पे खाना है, सच सच बात बोलना है, मन को सत्व गुण में रखना है। और जैसे कि अश्वगंधा, च्यवनप्राश हम देख रहे हैं आजकल, रसायन जो च्यवनप्राश जो है ये बहुत ही अच्छा रसायन कल्प रहता है। लेकिन खाली ये मेरी विनती है कि आप ये सब कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। च्यवनप्राश ऐसी चीज है कि आप ले सकते हैं और 15 दिन के लिए अश्वगंधा, घनवटी वगैरह ऐसा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए, कोई भी चीज का साइड इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है हमेशा से ही, क्योंकि ये अपने आप में बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। अश्वगंधा खराब नहीं है, च्यवनप्राश खराब नहीं, या फिर कोई भी आयुर्वेद का जो मेडिसिन है वो खराब नहीं है। लेकिन खराब क्या है, तो कम ज्ञान, आधे ज्ञान में उसको यूटिलाइज करना, ये बहुत ही खराब चीज है। तो हमेशा आप कोई भी चीज एक बार तो भी कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। तब आप ये अश्वगंधा बहुत ही सॉरी च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा है अभी के सीजन में, आप वो उसको तो जरूर ले सकते हैं।
पंचकर्मा, जैसे सर ने बोला कि पंचकर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल द बोन डिसीजेस। तो कोई भी जो भी अस्थि के डिसीज है, हम उन्हें अभ्यंग, बस्ती, शिरोधारा, नस्य, कायसेक, ऐसे अनेक प्रकार के पंचकर्म हैं। और ये पंचकर्मा जो है इतने अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपको उसका पैथोफिजियोलॉजी सबको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसका अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि ये डायरेक्टली बोन टिश्यूज के ऊपर ही काम करता है। हाँ? तो एक जाते जाते मैं आपको बोलूंगी कि आपको कब दिखाना चाहिए। आप हेयर फॉल लक्षण है, या फिर बोन में पेन हो रहा है, फैन चल रहा है और इधर हमारे हड्डी में तुरंत पेन शुरू हो रहा है, या फिर ऐसा बहुत दिनों से वीकनेस 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 चलते आ रहा है, काम करने का इच्छा नहीं होता है, हाँ, नाखून जैसे दिखाए गए हैं पिक्चर में, ऐसा अगर फ्रजाइल नेल्स दिख रहे हैं, हाँ, या फिर अपने बाकी के हेयर लॉस दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द इंडिकेशन। यू शुड नॉट वेट एंड यू शुड नॉट ट्राई टू रिजॉल्व ऑन योर ओन। घर में ही अपने अपने डॉक्टर स्वयं बनो, मत करना ऐसा। आप जाकर कोई भी वैद्य को दिखा देना। तो ये हो गया हमारी तरफ से ऑस्टियोपोरोसिस का प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अगर थैंक यू डॉक्टर सोनल, दैट वाज अ वंडरफुल सेशन। ऑडियंस में से किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर थोड़ा स्टार्टिंग बताएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे शुरू होता है? ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है हेयर फॉल से। अपने नाखून, आप लक्षण वो बता रहे हैं या? ना 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 ना, आई एम आस्किंग, क्या हुआ है, मेरे नी में ना थोड़ा पेन शुरू हुआ है, और फिर स्वेलिंग साइड में आई, और दबाती हूँ तो जैसे वात का आपने बोला ना, तो डकार जैसा होता है। और ये वात का प्रॉब्लम मेरे को काफी टाइम से है, वो बॉडी में किधर भी जाता है तो दर्द शुरू होता है। तो अभी मेरे को ये पता लगाना है कि वेदर ये वात है या स्ट्रेस की वजह से भी ये बढ़ता है ना? यस यस, एग्जैक्टली। स्ट्रेस जो है ये भी वात बढ़ने का एक कारण है, और वात के 80 प्रकार की व्याधि रहते हैं। अ, अच्छा। हम लोग जब भी बोलते हैं, लोगों को लगता है कि अरे कोई ये जो भी वैद्य है ना, कोई चीज हाँ वो वात है वात है वात है ऐसा बोलते हैं, लेकिन हाँ वो 80 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। तो अगर स्वेलिंग है तो ये, और हाँ पेन है तो इसका मतलब वात तो है ही, वात का हाँ विकार। लेकिन हाँ। जो स्पेसिफिक जो है आपका कंडीशन, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, बात पे डॉक्टर, क्या नी में पेन भी कैसा है कि टॉलरेट कर सकती हूँ? ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, ना के बराबर पेन है, और स्वेलिंग साइड में थी तो हॉट फर्मेंटेशन किया तो उससे काफी गया। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से ये हुआ है। आपकी उम्र क्या है? 62। हाँ, तो 62 है तो ये अपने आप में ही एक रीजन है कि आपका वात बढ़ रहा है। और जैसे अच्छा। आपने एक्सप्लेन किया सर ने भी और मैंने भी, आपने देखा होगा कि बेकरी प्रोडक्ट है आपके शरीर में जाने वाले, या चना, हाँ बेसन, हाँ या फिर चिंता है, स्ट्रेस है, तो ये सब चीजों से वात बढ़ने ही वाला है। तो अगर इससे हम अगर दूर जा सकते हैं तो आगे चल के जो यहाँ से आगे है, जो हाँ। वात का तक बढ़ेगा उसको ये रोक देगा। हम्म। और जैसे कि आप हॉट फर्मेंटेशन कर रहे हैं, हम्म। ये आप करते रहिए, थोड़ा सा ऑयल एप्लीकेशन करते रहिए, और अगर इससे ये कम होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर, स्ट्रेस का लेवल, अगर समझो स्ट्रेस आया घर में या किधर से भी, तो इमीडिएट इफेक्ट होता है इसका? यस, क्यों नहीं। स्ट्रेस आता है तो तुरंत तुरंत भी उसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे कि अभी मेरी एक डॉक्टर ही फ्रेंड है, और उसके एक रिलेटिव है, उसमें से जो हस्बैंड है उनको कोरोना हो गया, तो पत्नी ओके। पत्नी ने स्ट्रेस लिया तो तुरंत स्ट्रोक आ गया। ओहो, राइट। वात विभु है, चंचल है, सूक्ष्म है, वो फटाक से उसका काम करता है। तो स्ट्रोक आना इज द, क्या है कि रप्चर हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, ब्लड जो हाँ hemorrhage है। तो हाँ ये हाँ है ना इमोशन,
plays a lot big role. Yes, yes, yes. कि जैसे ही मन सूक्ष्म है और बहुत फास्ट काम करता है, ऐसे ही ये जो वात है वो बहुत जल्दी काम करता है और स्ट्रेस के कारण ये जल्दी बढ़ के तकलीफ भी दे सकता है। और मेरा ब्लड प्रेशर भी राइज हो गया। ब्लड प्रेशर वैसे रहता था और दवाई लेती थी तो नॉर्मल है, कुछ भी स्ट्रेस आया लेवल या कुछ हुआ तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था। अभी विद द मेडिसिन अभी कंट्रोल में है। ज्ञान वायु का ये कारण है, ये रहता है, काम रहता है ब्लड प्रेशर को अच्छा रखना। तो एक वात खराब हो गया तो वो अपने आप में सब वातों को गड़बड़ करा देता है, उनका इम्बैलेंस करता है। तो फिर ये हृदय की गति में ब्लड प्रेशर को भी चेंजेस ला देता है। इसीलिए मैंने जो बोला कि सच्चा बोलना, अच्छा बोलना और मन को शांत रखना ये बहुत शांत का तो बहुत कोशिश है मेरी, शांत हूँ, हैप्पी गो लकी हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डॉक्टर साहब से मैं ऑनलाइन बात कर मिल सकती हूँ या परसों? परसों मेरे को आना है फिजियोथेरेपी के लिए भक्ति वेदांता में। हम लोग का भक्ति वेदांता जो है वो सेकंड होम है। डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं, आई एम मिसेस तलरेजा। ओ यस 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 तो परसों मैं आने वाली हूँ उधर, तो आपसे मिल सकती हूँ 12 बजे के आसपास आफ्टरनून को। आप 1 o'clock के परसों अगर मिलना है तो आफ्टर 1 o'clock यू कैन कम। आई एम देयर आफ्टर 1 to 5 आई विल बी देयर। ओके, शार्प 1 o'clock I'll come. नो प्रॉब्लम डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर से तो बहुत बार बात करी है, डॉक्टर साहब से तो नासिक यात्रा में गए थे तभी भी थे साथ में, और आपसे पहली बार मिल रही हूँ। हाँ? और आपके गांव के मनुका खाते हैं, इट इज रियली टू गुड, थैंक यू थैंक यू। टू गुड। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, I would like to ask a question. What would be an ideal diet to avoid osteoporosis? अच्छा, तो उसमें डूज एंड डोंट्स दोनों आएंगे। हाँ. रहे आप, आर यू देयर ऑन द वीडियो? No, I'm not on video, but I can switch it on. ओके। Yeah. तो ये जो है प्रॉपर डाइट में एक तो ना जो चीजें हैं, जैसे कि बेकरी को अवॉइड करना है। हाँ. प्रॉपर डाइट जब भी रहता है तो व्हाट शुड बी अवॉइडेड इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो जो बेकरी प्रोडक्ट है और फर्मेंटेड फूड है, इसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। Okay. पोरोसिटी बहुत ज्यादा रहती है और हमने अगर रिसर्च करे तो जैसे कि साउथ इंडियंस एंड जो ब्रेड खाने वाले ठंडी कंट्री है तो वहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का प्रमाण है। तो एक तो घी और ऑयल का होना जरूरी है खाने में। वो मात्रावत होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। Ghee we can have, no more than oil. यस, घी। और जो है जैसे कि दूधी है, घिया, तुरई, ऑल सब्जीज यू कैन हैव। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है गेहूं, व्हीट। क्योंकि ये जो व्हीट है ये डायरेक्टली अस्थि धातु को पोषण करता है। Okay. तो ये जो जैसे कि इसीलिए व्हीट का हलवा है, गुड़ का, लापसी है, या Okay. चपाती है, घी हाँ. या चपाती, Okay. एंड देन बाजरा। ऑल दीज आर हाँ. सोर्सेस टू हैव गुड बोन्स इन योर बॉडी। और फिर खारीक जो है, खजूर का भी हाँ. एक फ्रूट जैसा रहता है और एक जो खजूर का चटनी बनता है वो वाला है। Correct. हाँ. खारीक रहता है जो सूखा रहता है ठंडी में। Correct. तो रीजन बिहाइंड इन आवर कल्चर कि खारीक का जो लड्डू बनता है, कोकोनट, ड्राई कोकोनट या फिर गीला कोकोनट जो है उसको यूज करके जो खजूर का लड्डू बनता है, उसका खारीक का लड्डू बनता है, उसका रीजन ही यही है ट्रेडिशनली। Okay. ठंडी का सीजन रहता है नेचुरली, उसमें अगर हम ये लड्डू खाते हैं तो ये हेल्प करता है। हाँ, फ्रेश खारीक भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो भी खा सकते हैं ना? बिल्कुल खा सकते हैं। खारीक है और हलीम। हलीम पता है आपको? हलीम नहीं। तो हलीम नाम का एक ऐसा रेडिश सीड रहता है। तो दैट इज वेरी गुड फॉर द बोन हेल्थ। ओके। हलीम है, दूध है,
और कोकोनट, खारीक, हाँ, ये सब अच्छी, बहुत ही yeah, yeah. Actually, na, for my knee, I have got a little swelling behind my knee. It is a swelling, but it's not painful or anything. So I showed the doctor, a regular one of the specialists. तो उसने बोला कि it is because of the fluid coming out of the knee. अभी that is not reducing, but it's not paining either. ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, ये जो Okay. ये हाँ, जो ये जो फ्लूइड है उसको सुखाना जरूरी है, बट हाँ, that which I told you, that हाँ, will means if you follow that, it will help to not to grow that fluid. हाँ, ये मदद yes, yes, हाँ, लेप बनाते हैं हम लोग, लेप करते हैं, एंड देन देयर okay, इज इंटरनल मेडिसिन की जो है, तो हाँ, 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 ये जो स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए जरूर मदद करती है। okay, okay, आज जी ने भी पूछा कि स्वेलिंग है, तो हाँ, सबके लिए अपने पास ट्रीटमेंट है, जैसे हाँ, ये जो नी जानू बस्ती बोलते हैं हम लोग, जानू बस्ती है, okay, तो संस्कृत में जानू कहा जाता है, तो जानू बस्ती okay, है, या फिर लेप रहते हैं, तो ऐसे हाँ, से okay. कम कराया जा सकता है। So it will not be only by diet. It will not be only by diet. डाइट कैसा रहता है, व्हेन इट विल हेल्प, यू नो, व्हेन यू आर एट द एज जहाँ पे आपका एज आपको सपोर्ट करे, तुरंत जैसे कि बच्चों में थोड़ा सा डाइट चेंज कर लिया ना, तो अगर हाँ, नहीं है, डिसीज के 6 स्टेजेस रहते हैं, तो हाँ, 6 से अगर पहले दूसरे तीसरे स्टेज में हम डाइट फॉलो करके तुरंत फटाफट उसको रिवर्स लाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हाँ, आपका जो है ऑलरेडी ये हो चुका है, हम व्यक्त हो चुका है, इट इज हाँ, स्वेलिंग एट योर नी, तो हाँ. प्रॉपर आ गया है, पेन हो रहा है, तो इट इज नहीं, पेन नहीं हो रहा है, but it is swelling is there. बट डिफिकल्टी वॉकिंग और एक्शंस इज देयर, राइट? No, no, no. I walk regularly and I can climb up steps, everything. But वो swelling है पीछे, means it is there is a little lump behind. राइट, इन योर एक्शन। So, do you come to this side of town to Radha Gopinath Mandir or somewhere? Right now we are very much packed up with corona care, हाँ, so or we can have a video consultation also, not a problem. okay, all right, तो yes. ये जो है ऐसे स्वेलिंग में लेप और ये पंचकर्मा मदद करता है। Okay, yeah. Thank you so much. Thank you so much. I think we are done with the questions, Mataji. और किसी को कुछ पूछना है कि should we end the session? Hare Krishna. Okay, so Mataji, I don't think anybody has any questions, so we will end the session.